Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Neha. This video lecture is about drama या genre of drama. हिस्ट्री के साथ साथ हमें genre का birth and growth का पता होना भी बहुत ज़रूरी है. तो this video lecture will talk about birth, birth and growth of drama, how it emerged on the literary scene, how it was accepted, it became interesting and as a result of which popular. So, birth and growth of drama, this video will be divided into two parts. हम इस वीडियो को two parts में divide करेंगे. This video is the part 1 and our discussion will go like first mystery plays, mystery and miracle plays, second will be morality plays, third will be interludes, and fourth will be the artistic period of drama, and fifth is university wits and so on. This video will help you in knowing drama as a genre from the very roots. So without wasting time, let us get into the video and don't forget to subscribe to my channel. First of all, we have the mystery and the miracle plays. Mystery plays and drama as an art form पहले परफॉर्म किया जाता था चर्च में. चर्च में परफॉर्म करते थे और चर्च की ही क्लर्जी इसे परफॉर्म करती थी, इनैक्ट करती थी. तो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस बेसिकली दे वर परफॉर्म्ड इन द चर्च एंड डेल्ट विद द मिस्ट्रीज ऑफ बाइबल, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फॉल ऑफ ल्यूसिफर, नोआ एंड द नेटिविटी. इन चीजों पर बेस कर प्लेस को परफॉर्म किया जाता था. दे वर नॉट परफॉर्म्ड वीकली और एवरी डे, बट दे वर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स. दे वर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर डेज लाइक दैट, सेलिब्रेटरी डेज. इन प्लेस को हम कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस के नाम से भी जानते हैं. कीप अ पेन एंड पेपर विद यू व्हाइल आई टीच यू द बर्थ एंड growth of drama. First in the queue is the mystery and miracle plays performed in the church, performed by the clergy of the church, also known as the Corpus Christi plays. They were performed in cycles, York cycle, then we have the Chester cycle, Wakefield cycle. इसका एग्जाम्पल है second Shepherd's play. Second Shepherd's play. And we have Noah's. ये बात करते थे बाइबल की, जीसस क्राइस्ट की, फॉल ऑफ ल्यूसिफर की, एडम एंड ईव की. मिस्ट्री प्लेज आई एम टॉकिंग अबाउट. इनको हम कॉर्पस क्रिस्टी प्लेज भी कहते हैं. दे वर परफॉर्म्ड इन साइकिल्स, दे वर परफॉर्म्ड ऑन द स्पेशल डेज. एंड देन वी हैव द मिरेकल प्लेज. इफ मिस्ट्री प्लेज टॉक्ड अबाउट द मिस्ट्रीज और रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, miracle plays basically dealt with saints, साधु और संत. इन्होंने क्या चमत्कार किए उसके बारे में जो है वो प्लेस ये बात
करते हैं. So we have the mystery plays, we have the miracle plays and the lives of saints that deals with the lives of saints. After miracle plays became popular, drama as a genre fell into the hands of secular people. Secular people started enjoying drama. Drama as a genre started gaining popularity. Drama को popularity मिलने लगा. Drama fell from the hands of clergy to the hands of people. By and by, audience increase होती गई from the inside of the church. Drama went into the yard, giving way to the second section of our discussion, that is the morality plays. Morality plays. Morality plays are the plays that basically deal with the morals. Moral देने के लिए जो है ये ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे. Their aim was didactic. They aimed to lend a moral about good and evil, and the famous morality play is The Castle of Preservance. देखो बेटा, पहले सारा कुछ रिलीजन से स्टार्ट होता है, प्रेजर्वेंस. फिर हम मिराकल पर आए हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोरालिटी प्लेस. द कैसल ऑफ प्रेजर्वेंस, वी हैव एवरी मैन, that is subtitled as a morality play. कहाँ चर्च के पीपल ने इसे परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, एंड नाउ इट इज इन चर्च यार्ड, परफॉर्म्ड बाय द पीपल. इट परफॉर्म्ड बाय द पीपल, जनरल पीपल, टाउन्स पीपल, बट द कंटेंट वाज essentially mysterious, miracle and moral based. Marriage of wit and wisdom. जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती है ना, इंडिया में अगर हम ड्रामा की बात करें तो हमारा सबसे बेस, अगर हम इंडियन ड्रामा के ग्रोथ एंड बर्थ को चार्ट करते हैं तो हमारा सबसे बेसिक एग्जाम्पल बनता है नुक्कड़ नाटक. सेकेंड एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज रामायण एंड महाभारत को लेकर के जो रिलीजियस पीपल द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि रामलीला, दशहरा और दिवाली के फेस्टिवल पर. तो मोरालिटी प्लेज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्लेज इन द सेंस दैट मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज डेल्ट विद religion. They were more close to religion, whereas moral based plays, they were more close to the journal lifestyle, about sin and good, about ill and well. इन चीजों के बारे में बात की जाती थी. About every man, about the vices and virtues of every man. So morality plays हमारे second stage पर आते हैं. थर्ड स्टेज पर हमारे आते हैं इंटरल्यूड. क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी सीन की सेटिंग को लेकर के, तो बीच में कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंटरल्यूड्स लिखे जाते थे. इंटरल्यूड्स आर शॉर्ट प्लेज और प्लेलेट्स दैट आर मेंट टू गिव सॉर्ट ऑफ कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस. सो इंटरल्यूड्स चेंज ऑफ सीन के बीच में परफॉर्म किए जाते थे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉन हेवुड्स द 4 P's. PYQ. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई ये 4 P's कौन है. इट्स अ PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इंटरल्यूड्स ध्यान रखिएगा, कॉमिक रिलीफ एंड इंटरल्यूड्स के बाद हम बात करने वाले हैं हमारे आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ ड्रामा. आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ ड्रामा.
अब बिकॉज ड्रामा एज ए जॉनरा बर्थ भी हो चुका था, ग्रो भी कर रहा था, तो आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ ड्रामा में हमारे पास आती है हमारी फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट tragedy. First comedy is Ralph Royster Doyster. First tragedy is Gorboduc. Written by Sackville and Norton by Nicholas Odell. वेरी इंपॉर्टेंट, कब कहां से क्या चीज पूछ ली जाए, PYQ है ये, इट्स अ PYQ, पूछा गया है। गॉर्बोडक का सेकेंड नेम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। Very important, the artistic period of drama, first comedy, first tragedy, हमने देखा है मिस्ट्री, मिराकल, मोरालिटी, इंटरल्यूड एंड आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ ड्रामा। PYQ है गॉर्बोडक, जिसको हम फेरिक्स पोरिक्स भी कहते हैं, एंड आफ्टर इट they were written by, the play was written by Sackville and Norton, and first is Ralph Royster Doyster comedy written by Nicholas Odell। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूंगी कि फर्स्ट ट्रेजेडी was based upon Roman playwright Seneca, and first comedy was based upon Plautus and Terence. So with this video, with this section, I come to the end of this video. You know why? Because university wits need पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। ड्रामा के ग्रोथ में जब हम बात यूनिवर्सिटी विट्स की करेंगे तो हम उसको पार्ट 2 में अलाइन करेंगे, बिकॉज दीज पीपल आर इम्पॉर्टेंट। बर्थ देखिए, ग्रोथ देखिए, आएंगे हम विलियम शेक्सपियर पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।